I've been studying the book of Mark. मैं मार्कुस का किताब पढ़ रहा हूँ And I've reached chapter 10. और 10 अध्याय में पढ़ेंगे. And chapter 10 has a few questions in it. और 10 अध्याय में बहुत सारे सवाले हैं. And the first question is asked in Mark chapter 10, verse 22, when some Pharisees came up to Jesus, testing him, and began to question him whether it was lawful for a man to divorce a wife. 10:2 तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? Now, when I'm studying this chapter, I was a little uncomfortable studying this. Should I avoid this particular text and try to go to the other part of chapter 10? जब भी ये वचन को जब 10:2 जो है, इस वचन को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो इससे थोड़ा पार करके दूसरा अध्याय में जाना चाहता हूँ. इसको इतना पसंद नहीं है. And as a good teacher of the word of God, I am supposed to teach it whether I like this particular topic or not. यदि अगर मैं सच्चा और अच्छा शिक्षक हूँ वचन का, तो इससे मैं पसंद करूँ या ना करूँ. ये So I'm not teaching this particular topic today because some of us are thinking about divorce. मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा. शायद हम लोग कोई ऐसे सोच रहे हैं कि आज डिवोर्स के बारे में ही बात होगा. Yeah, I will be talking about divorce, but it's not that somebody sitting over here wants to divorce his wife or husband over here. मैं सच्चा ही मैं इस डिवोर्स के बारे में ही बातचीत करूंगा, लेकिन यहाँ पे बैठे उन लोगों के लिए नहीं, कुछ दूसरी जगह के लिए करूंगा. And there is something for all of us, even the young people sitting over here need to learn. और जो जवान लोग बैठे हैं उन्हें भी ये सीखना बहुत ही जरूरी है. Because marriage is the second most important thing that will happen in your life. और जो विवाहित जीवन है, जीवन का दूसरा जो मुख्य बात है हमारे जीवनों का. Salvation being the first important thing that happens in your life. उद्धार का काम है जो सबसे पहला काम है जो हमारे जीवन में. And marriage is the second most important thing that will happen in your life. और विवाहित जीवन जो है दूसरा मुख्य बात है हमारे जीवनों का. So for us, we need to understand this particular question as to why this question was brought up to the Lord Jesus Christ. So ये सवाल जो किया गया है इसे समझना हमारा बहुत जरूरी है, और ये किस लिए किया गया. Now, if you look at Mark's gospel, it is after Mark chapter 8 that the Lord Jesus Christ is heading south towards Jerusalem. और जब हम लोग मार्कुस का जब किताब को पढ़ते हैं, 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो उत्तर भाग से दक्षिण की ओर प्रभु यीशु मसीह जेरूशलेम की ओर जा रहे हैं. And he spent most of his time in the Galilee region teaching and preaching around the Galilee villages. और प्रभु यीशु मसीह गलील की जगह में बहुत सारी जगहों में प्रचार करते अपने जीवन को बिताए थे. And if you look at the map over there, Capernaum is over there, the Sea of Galilee is over there. The Lord Jesus Christ perhaps spent more than 2.5 years in that region over there. और जब हम लोग इस चित्र को जब देखते हैं, वहां पे गलील का नदी है, कैफरनू है, और कम से कम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह 2.5 साल इस एरिया में बिताए थे. And he then went even further, not up to Caesarea Philippi, and he asked the question to Peter, who do you say that I am? और प्रभु यीशु मसीह उत्तर की ओर भी लेकर के पतरस को भी पूछा था, ऐसा पूछा था कि मैं कौन हूँ. And it is only after that that the Lord Jesus Christ starts teaching his disciples that I have to die, I have to die on a cross. He started telling the disciples that. ये सवाल के बाद और ये सिखाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये शुरू किया कि ये शिक्षा देना शुरू किया कि मुझको क्रूस पर जाना है और मुझको मरना है. The disciples weren't able to understand that why he's talking about death and he's going to die on the cross. They didn't want to hear all of that. और चेलों जो थे वो लोग इस बारे में समझ भी नहीं पा रहे थे और वो जानना भी नहीं चाहते थे, और ये सोच रहे थे कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्यों मरना चाहता है. Jesus knew that he has a short time, perhaps another 6 months remaining, that he needs to train
and disciple his followers. और जो उनके अनुयायी थे, जो चेले थे, उनको प्रभु यीशु मसीह ये 6 महीने के दौरान उनको पूरा रीति से उनको सिखाना चाहते थे. And marriage also is a very important part of a disciple of the Lord Jesus Christ. और जो विवाहित जीवन है वो भी बहुत ही मुख्य भाग है चेलों के जीवन में. ये सिखाना चाहते थे प्रभु. And there are 3 times Jesus Christ prophesies his death in Mark's gospel. प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में 3 बार इंगित किया है इस पदों में. Regarding his death on the cross. और उसके मृत्यु के बारे में जो क्रूस पर मरने वाला था. In 8:31 we see that he's up in Caesarea Philippi. He prophesied that he's going to die on the cross. और 8:31 में जब हम लोग देखते हैं सीजरिया जो फिलिपाई बोल के जगह है गलीली के पास, वहां पे मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं. And then in the Galilee region around the sea, there also he prophesies about his death. और गलीली के विभिन्न इलाकाओं में भी अपने मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं. But now if you come to chapter 10 verse 1, we read here that getting up he went from there to the region of Judea and beyond the Jordan. Crowds gathered around him again, and according to his custom he once more began to teach them. और जब हम लोग 10 का एक पद में जब आते हैं, 10 का एक वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर वह वहां से उठकर यहूदियों के सीवानों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और अपने रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा. Okay, so Jesus Christ has come down south. He's closer to Jerusalem now. He's come down. He's in this region beyond the Jordan River in Perea. प्रभु यीशु मसीह अब दक्षिण की ओर नीचे उतर रहे हैं और उस पेरिया बोल के एक जगह है, वहां पर उसने वो अपने उस जगह को उसने अब गढ़ बना रहे हैं. Now, why am I showing you this on the map that Jesus Christ is coming south now to the region of Perea? What is the connection with divorce and marriage and all that? और दक्षिण की ओर से पेरिया तक आने का उद्देश्य क्या है प्रभु के बारे में, क्या उद्देश्य है, और ये शादी विवाहित के बारे में ये क्या मुख्य बात है, उनको बताना चाहते हैं. If you remember where John the Baptist was beheaded, आप लोगों को पता है कि जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसका सर कलम कहाँ पे किया गया था? it was in this region of Perea. यही पेरिया का जो इलाका है, इसी इलाका में ही उसे मारा गया था. And who was controlling that region of Perea? और उस पेरिया को कौन शासन कर रहे थे? It was Herod. जो हेरोद राजा था वही कर रहे थे. And what had Herod done? और हेरोद ने क्या किया था? He had divorced his wife and taken his brother's wife as his own wife. उसने क्या किया था? अपने पत्नी को त्याग करके अपने भाई का पत्नी को उसने विवाह किया था. And what did John the Baptist do? He told Herod, you have done wrong. It's not right for you to take your brother's wife. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें हेरोद को यही कहा था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, अपना भाई का पत्नी को विवाह करना ये गलत बात है. And what price did John the Baptist have to pay for telling the truth to Herod that it's wrong for you to take your brother's wife? और यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला जो सही बात, सच्चा बात जब बोला तो उसका परिणाम उन्हें क्या मिला? His head. उसका सिर को कलम किया गया. So now Jesus is in that same area over there. और प्रभु यीशु मसीह भी अब उसी जगह पे है. And who's coming there behind him? The Pharisees, the scribes, the pundits over there, they are coming and asking this question to the Lord Jesus Christ. और उस इलाका में अभी सदुकी है, फरीसी है, वो लोग अभी आ करके ये सवाल पूछ रहे हैं. So what is their intent in asking Jesus this question? और उन लोग का मुख्य वो किस उद्देश्य से लेकर के वो लोग ने सवाल किया था प्रभु यीशु मसीह को? They know what stand Jesus is going to take. ये उनको पता था कि यीशु मसीह क्या बोलेगा. वो लोग जानते थे. So they are trying to get Jesus caught and have his head also chopped off. वो लोग चाहते थे कि इसी प्रकार से अगर दोषी पाया जाए प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह को भी उसी प्रकार से बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की तरह मारा जाए. So these scribes and Pharisees were behind the Lord Jesus by hook or by crook. They have to get Jesus Christ killed.
और ये फरीसी और सदुकी लोग इतना उनका माने पीछा कर रहे थे, उनके पीछे लगे हुए थे, जिस हर प्रकार से कोशिश कर रहे थे कि उन्हें मार डाला जाए। So I'm going to give you 4 reasons why there is no divorce according to this chapter 10. मैं कुछ बातों को बताऊंगा क्यों डिवोर्स नहीं देना चाहिए, त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। And if you look at this carefully, this passage, what is the Lord Jesus Christ trying to tell us? अगर हम लोग इसे ध्यान से जब देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं। In Deuteronomy chapter 24 verse 1, before reading that verse, in Mark chapter 10 verse 3, this verse, the Lord Jesus Christ, when he was asked about divorce, he says that उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दिया? What did Moses command you? 3 को जब हम लोग पढ़ते हैं 10 का 3, उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। So that commandment was given in Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 4. और ये आज्ञा व्यवस्था विवरण 24 का 1 से लेकर के 4 तक ये कहा वहां पे दिखाया गया है, लिखा है। And so if you really look at that verse, yeah, there is the Moses does command, or the Lord is giving us the where you can write a certificate of divorce and send that person away. और वहां पे व्यवस्था विवरण 24 का 1 से 4 में किस प्रकार से, किस वजह से आप अपना पति या अपने पत्नी को किस प्रकार से आप त्याग पत्र दे सकते हैं, वहां पे लिखा गया है। So if we turn to Deuteronomy chapter 24, आइए हम लोग व्यवस्था विवरण में जाएंगे। and if you read the verse 1, when a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some indecency in her, and he writes a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out from his house. And verse 2, and she leaves his house and goes and becomes another man's wife. Verse 3, and if the latter husband turns against her and writes a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out of the house, or if the latter husband dies who took her to be his wife. 24 का 1 से 3 तक मैं पढ़ रहा हूँ। व्यवस्था विवरण, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकाल जाए तो तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरी पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपने पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को Okay, so in verse 1, the condition over there is if he finds anything unclean. यहाँ पे 24 का 1 में लिखा है, यदि आप किसी प्रकार से अदुष्टता माने अदूषित बात जब पाते हैं। So what was that uncleanness is not defined over here. यहाँ पे जो अदूषित जो किया लिखा गया है उसके बारे में पूरा रीति से वृत्तांत नहीं बताया गया है, वो क्या है। But when we read in the New Testament, the Lord Jesus Christ defines what is that uncleanness. लेकिन जब हम नया नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में ये अदूषितता जो है उसको पूरा रीति से वर्णन किया गया है प्रभु यीशु मसीह ने। And that uncleanness is, if you read Matthew chapter 19 verse 9, is talking about the same incident about what we read in Mark. There it defines what is that uncleanness. Matthew chapter 19 verse 9. मत्ती 19 अध्याय का 9 पद में इस प्रकार लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस
छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। So what is the uncleanness that is talking about? It is sexual immorality. और यहाँ जब हम लोग देखते हैं अशुद्धता के बारे में, यानी कि व्यभिचार के बारे में, जो शारीरिक संबंध के जरिए होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। So if the husband finds that his wife is having a relationship with somebody else, then that is the uncleanness and the condition where he can say that he can divorce. यदि पति अगर पत्नी को इस वजह से पाए कि वह उसका पत्नी जो है दूसरी के साथ अगर संबंध रखा है, तभी वो त्याग पत्र दे सकता है। And the other point over there in Deuteronomy chapter 24 verse 1 is that when she finds no favor in his eyes. और 24 का व्यवस्था विवरण 24 में इस प्रकार से लिखा है कि यदि वो किसी रीति से अनुग्रह ना पाए, so because she has committed sexual immorality, that is why there is no favor in the eyes of the husband. और उसने शारीरिक संबंध रखा, इसी कारण से उसके पति की ओर से उसे अनुग्रह नहीं मिला है। Now come back to Mark chapter 10 verse 5. मरकुस 10 का 5 में जब हम लोग आएंगे, Mark chapter 10 verse 5, Jesus Christ is saying about the same commandment, but Jesus said to them, because of your hardness of heart he wrote this commandment. और 10 का 5 में इस प्रकार से कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी। So Jesus Christ is telling that yes, the reason that she is not being found favor in your eyes is because your hearts are hard. हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हाँ, उसने तुम्हारे ओर से अनुग्रह नहीं पाया, कारण तुम्हारा हृदय क्या है? कठोर है। Now please try to understand, this is getting a little complicated I think, but try to understand this situation. The wife has committed adultery. हाँ, थोड़ा ये पेचीदा है, थोड़ा आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि एक पत्नी ने व्यभिचार किया है। The husband finds out about that. और उसको पति ने उसको पता लग चुका है कि पत्नी ने व्यभिचार किया है। The husband is very hard that you have done wrong. It is absolutely unacceptable that you have done this. और पति जो है बहुत कठोर हो गया और कह रहा है कि तुमने गलत किया है, ये तुम गलत किया है तुमने। The Lord Jesus Christ is saying that there are situations where you should have forgiven your wife. और इस कठोरता की वजह से, तुम्हारे हृदय के कठोरता की वजह से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें उसे क्षमा देना है, उसे क्षमा करना है, माफ करना है। The Lord Jesus Christ is teaching an important lesson to the men over there that God is forgiving us in spite of us living an adulterous life as sinners. और प्रभु यीशु मसीह ये जताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हमने भी जो पाप किया है, जो गंदगी किया है, उससे क्षमा देने वाला प्रभु है। Yeah, just the husband can forgive his wife if she commits adultery. और पति को अपने पत्नी को भी क्षमा देना है। Because God is forgiving us for all my sins. इसी कारण से कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे सारे अपराधों को उसने क्षमा किया है। Just imagine, think about all the sins that you have committed in your life. और उसी को अगर हम लोग उल्टा कर दे, पति ने अगर ऐसा किया हो, अगर इस प्रकार से गंदगी किया हो, तो क्या होगा? अपना खुद के बारे में आप सोचो, मैंने कितना पाप किया मेरे जीवन में, मेरे जब तब तक जीवित है। हाँ, अपने बारे में हमें अपने आप को टटोलना है कि अंदर तक जाना है, झांकना है कि मैंने कितना पाप किया है। And that sin can be even in our mind, in our hearts. और वो ऐसे पाप है जो हमारे दिमाग और हृदय में भी रहता है। And God knows all those dirty sins that we have accumulated in our lifetime, even in our head. और परमेश्वर जो प्रभु है, उसको सब कुछ पता है हमारे अंदर में जो बैठा के रखा है हम लोग ने। And yet he wants to forgive us. फिर भी वो हमें क्षमा देना चाहता है। He wants to show grace. वो हमें अनुग्रह दिखाना चाहता है। He is ready to show favor to us when we do not deserve any favor from him.
वो हर समय तत्पर रहता है हमें दया दिखाने के लिए, लेकिन उस दया की योग्यता हमारे पास नहीं है, फिर भी वो दया दिखाने के लिए तत्पर रहता है। So the Lord Jesus Christ is trying to say it's the problem of the heart. प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि ये समस्या कहाँ है, हमारे हृदय में। And as we read the whole passage, we will understand that. Let's read Mark chapter 10. We'll read now from 6 to 12. Let's read the remaining part आइए of हम this. लोग 10 का 6 से नीचे तक पढ़ेंगे, 6 से 8 तक। पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। नहीं 12 तक। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपने पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पर पहले की विरोधी में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वह व्यभिचार करती है। So here the question we can ask then, what is a marriage? अभी हम लोग यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, ये शादी क्या है? It's heterosexual, that means it is between a man and a woman. ये क्या है? शारीरिक संबंध जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में रहता है ये। It's not between a man and a man or a woman and a woman. और ये ऐसा नहीं है कि जो पुरुष और स्त्री में। It's designed that God made Adam and Eve, not Adam and another man. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से बनाया कि आदम को बनाया और हवा को बनाया, माने यानी कि एक इंसान माने एक पुरुष को बनाया और एक स्त्री को बनाया। Marriage is supposed to be a lifelong companionship. और ये जो शादी जो है लंबा चढ़ने वाला, साथ में रहने वाला जीवन है। We've had friends in school. हमारे स्कूलों में दोस्त लोग हैं, but they are all gone after we've completed our 12th standard. They've all gone. We all have different lives now. और जब 12वीं पास करने के बाद वो अपना दोस्त लोग कहीं और चले गए, हम अपने और चले गए, अपने अपने काम कर रहे हैं। But only your wife will stay with you till you die. लेकिन पत्नी जो है जब तक आप नहीं मरेंगे तब तक वो आपके साथ रहते हैं। So it's a lifelong companionship that marriage is all about. और जीवन का लंबा समय तक रहने वाला ऐसा दोस्त है। And in Genesis chapter 2 verse 18 we know it. God says it's not good that man be alone. और उत्पत्ति 18 में इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य को अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। So the spouse brings completeness in your life. और जो पत्नी जो है उस आदमी को पूरा कर देता है, पूरा वो अधूरा है, अकेला रहने से अधूरा है, उसको पूरा कंप्लीट कर देता है उसको। And of course we know that this is a picture of the relationship between Christ and the church. और हमें ये समझना है कि ये ऐसा दृश्य है जो एक चर्च जो पत्नी है और प्रभु यीशु मसीह जो है एक दूल्हा है, ऐसा हम लोग जोड़े इसको। So this relationship of husband and wife is picturizing something of a relationship between God and man. और ये दृश्य ऐसा है जो परमेश्वर से हमें जोड़ता है, एक पति और पत्नी की तरह। And it is also when we in Mark chapter 10 verse 8 it says one flesh. When it says one flesh, it means there is also conjugal joy or joy that is enjoyed only between husband and wife. और मार्कुस 8 में इस प्रकार से लिखा है कि जो दोनों है वो अभी एक हो चुके हैं, वो एक होने के वजह से सिर्फ वो लोग की के अंदर में है, ऐसा गुप्त बात है जो वो लोग अंदर से वो लोग इसे आनंदित पा सकते हैं। This relationship that I have with my wife, I cannot enjoy with anybody else. और ये आनंदता जो है, ये जो खुशी है, हम सबके साथ नहीं बांट सकते। And some of the things that the points that I have here, my wife helped me with this. और कुछ ऐसी बात है जो भाई का पत्नी उन्हें मदद करती है। And I by no chance am a perfect husband. और मैं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा पक्का पति नहीं हूँ।
It is only by the grace of God that we are living a happy family life. लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग खुश के साथ एकदम खुशहाली के साथ हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं. So when in Mark chapter 10 verse 8 it is saying that we are of one flesh, it also means that we have to think together. 10 का 8 में 10 में इस प्रकार से लिखा है कि आइए हम लोग दोनों मिलकर के एक विचार होकर के सोचे. Okay, we are doing things together. हम लोग साथ में मिलकर के करें. We are praying together. हम लोग साथ में मिलकर के प्रार्थना करें. And of course, we love our parents. हमें पता है हम अपने अपने परिवार माता पिता को हम लोग प्यार करते हैं. In that one flesh, the in-laws also are not interfering. और उस हम लोग एकता में जब रह के हम लोग एक दूसरे से हम लोग प्रेम करते हैं, उससे हम लोग ये न समझे कि हमारे जो सास ससुर है वो लोग दूर का है, ऐसा उन लोग से भेदभाव हम लोग ना करें. So in-laws also do not interfere in the marriage. और वो लोग भी हमारे विवाहित जीवन में आकर के दखल अंदाजी ना करें. Friends don't interfere in the marriage. दोस्त लोग भी दखलबाजी ना करें. For football World Cup doesn't interfere in the marriage. Yeah. World Cup football doesn't interfere in the marriage. अच्छा. वर्ल्ड कप जो चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, वो हमारे बीच में हमारे जो विवाहित जीवन है उसके अंदर में ना आए. Your work should not interfere in your marriage. आपका काम जो है आपके विवाहित जीवन में दखल अंदाजी ना करे. As much as possible, we have to be together. ऐसा हो सके, भरसक हो सके, हम लोग एक दूसरे के साथ एक होकर के रहे. And that is what it is meaning of being of one flesh. और एक रहना का मतलब यही है. And in Mark chapter 10 verse 9 we read, what therefore God has joined together, let no man separate. और 8 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे. So this relationship with my wife, God has joined it. और ये जो पति पत्नी का रिलेशन, जो संबंध है, इसको परमेश्वर ने जोड़ा है. It is leaving the parents and cleaving to the wife. अपना माता पिता को त्याग करके अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ चिपके रहना है. Yeah, as we already saw, we become one flesh. और हम लोग जब हम एक अलग अलग नहीं है, अभी हम लोग एक है, एक ही बॉडी है. And when we got married, we took vows. Vows means in Hindi. vows शपथ. और हम लोग दोनों मिल करके क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं. Yes. So who did we take those vows in front of? और ये कसम हम लोग किसके सामने खाते हैं? In Malachi chapter 2 verse 14 is a very famous passage about marriage and divorce. मलाकी 2 का 2 verse 14. 14 में इस प्रकार से लिखा है, यह बहुत ही जाना माना अध्याय है. In verse 14 it says, yet you say, for what reason? Because the Lord has been a witness between you and the wife of a youth, against whom you have dealt treacherously, though she is your companion and your wife by covenant. 2 का 14 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है. Okay, so that covenant has been taken not just in front of people but in front of God. और जब हम लोग ने एक कसम जब खाया है तो किसके सामने? मनुष्य के सामने नहीं, जीवित परमेश्वर के सामने हम लोग ने ये कसम खाया है. So if divorce is coming, that means you're breaking that vow that we had made before God. यदि हमारे सामने ऐसा बिछोड़ना या त्यागना जब आ रहा है तो सचमुच हम लोग क्या कर रहे हैं, जो परमेश्वर से हम लोग ने जो कसम खाए थे उसको हम लोग तोड़ रहे हैं. And in verse 16 of Malachi chapter 2 verse 16, that very famous verse, it says, for I hate divorce, says the Lord God of Israel. और 16 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है.
पूरा पढ़ेगा। Bas. So that verse, first line in that verse 16 is, I hate divorce. जो पहले लाइन में पहला ये 16 का पहला लाइन में इस प्रकार से लिखा है, मैं परमेश्वर कह रहा है कि मैं घृणा करता हूं जो अपने पत्नी को त्यागता है। So does divorce then really happen? Is there any condition where there is a divorce? Yeah. When does divorce really happen? ये जो हम लोग त्याग पत्र देते हैं यानी कि डिवोर्स देते हैं, कब होता है? Only death. जब हम मर जाए। Death in Romans chapter 7 verse 2. That is when the separation has happened. The person is free to marry again. रोमी 7 का 2 में इस प्रकार से लिखा है कि जब हम मर जाते हैं, दोनों में एक मर जाता है, तभी वो आजाद हो सकता है, या स्त्री या पुरुष आजाद हो सकता है दूसरा से विवाह करने के लिए। And that's why we're taking this vow till death do us part. इसीलिए हम लोग कसम खाते हैं परमेश्वर के सामने, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Now in Matthew chapter 19 verse 9, when we read the same passage, there is a condition that the Lord Jesus Christ says, if there is adultery. और मत्ती 19 का 9 में हम लोग ने पढ़ा कि वहां पे किस आधार पे आप त्याग पत्र दे सकते हैं, वो है बेविचार। यदि आप बेविचार करते हैं तो आप त्याग पत्र दे सकते हैं। But remember that even if there is adultery, there is always the possibility to forgive that person. यदि ऐसा हमारे बीच में अगर इस प्रकार से बेविचार हो जाता है तो याद रखना है कि हमें क्षमा भी करना है। Okay, so the conditions that we find in the New Testament when divorce can happen, it's death, adultery, and the third one is desertion, or in 1 Corinthians chapter 7 verse 15. हम लोग ने देख रहे थे कि ये त्याग पत्र कब होगा, रोमी 7 का 2 में जो है मृत्यु आने के बाद, दूसरा है मत्ती 19 का 9 में जो है वो बेविचार करने से, और पहला कोरिन्थी 7 का पत्र में जो है जो परित्याग करने से। That means that spouse has left and not come back. We have no idea where he has gone or she has gone. In that condition, that person is free to marry again. हो सकता है कोई लापता हो गया, पता नहीं है, ऐसे अवस्था में विवाह हो सकता है दूसरा से। Now these are the conditions that we find in the New Testament. और ऐसे जो संभावना है जो हमें ये इजाजत देता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। But remember, there is always patience, forgiveness, and waiting on the Lord. लेकिन हमेशा याद रखना है कि हमें धैर्य धारण रखना है, क्षमा देने के लिए हमेशा उत्सुक रहना है, प्रभु यीशु मसीह में इंतजार करना है। So what do we learn from this all? So आज हम लोग इस अध्याय से हम लोग क्या सीख रहे हैं? One is marriage is not a joke. पहला जो है वो ये शादी जो है गुड्डे गिड़ी जो है, हम लोग क्या करते हैं, खिलौना जो हम लोग बचपन में खेलते हैं, आइए हम लोग शादी खेले, ऐसा नहीं है। In in Mark chapter 10 verse 10, the disciples in the house, the disciples began questioning him about this again. मत्ती 10 का 10 में फिर से चेलों ने यहाँ पे सवाल करना शुरू किया है, आइए हम लोग पढ़ेंगे। और घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। And in Matthew chapter 19 and verse 10, the same passage, but there's something else that is said over there. Matthew chapter 19 verse 10, the disciples said to him, if the relationship of the man with his wife is like this, it is better not to marry. 19 का 10 में, मत्ती 19 का 10 में इस प्रकार लिखा है कि चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं। Now I don't want to disappoint you about marriage. मैं आपको निराश करना नहीं चाहता हूँ शादी के बारे में। All parents are praying that their children will find suitable life partners. सबका परिवार, माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं अपने बेटे बेटियों के लिए कि उसके लिए अच्छा पति मिले या अच्छा पत्नी मिले। And it is really a blessing. और ये बहुत ही आशीष का काम है। And we as parents have a responsibility over here. और हमारा ये जिम्मेवारी है उनका, we as बच्चों की ओर। We as parents have to show that marriage is really a blessing.
हमें ये दिखाना है कि ये शादी जो है ये बहुत ही आशीषित जीवन है। हमें ये दिखाना है। If me and my wife are always arguing and always fighting, then my children are going to grow up and say, I don't want this kind of life. This is a horrible life. अगर हम लोग हर समय लड़ाई करते रहेंगे जो बिल्ली और कुत्ता की तरह, हाँ, तो हमारा जो सामने जो बच्चे हैं देखे, अरे ऐसा होता है शादी जीवन, बाप रे बहुत डरावना है ये। So the husband and wife have a role to play, that they show that really marriage is a blessing. हमें ये दिखाना है, ये प्रस्तुत करना है कि ये शादी जो है बहुत ही आशीषित जीवन है। And the young boys and girls over here, I want to tell you, it is the best thing that will happen in your life after your salvation. और मैं ये जवानों के साथ ये कहना चाहता हूँ, जवान लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपका जो उद्धार हुआ उसके बाद जो है ये शादी का जीवन जो है ये आपके जीवन में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जीवन है। And I hope you are excited about it. मैं जानता हूँ इस विषय में सब लोग इंतजार कर रहे हैं और कब होगा ये सोच रहे हैं। And I hope you are praying that God will show me a suitable person I can marry. मैं ये जानता हूँ कि आप लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और मुझे दिखाएगा परमेश्वर, वो मेरा जो जीवन साथी वो कहाँ है प्रभु दिखाएगा। Because that person is going to fulfill all your desires, all your blessings, all your joy will be complete in that person. जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो जब मिल जाएगा तो वही आपका सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ आनंद वो लेकर के आएगा। And when we look at Job's life, how many children did he have? यदि हम अय्यूब के जीवन देखते हैं, उसका कितने बच्चे थे? Do you remember? We are looking at the book of Job. 10 children. उसका 10 बच्चे थे। So do you think Job was happy in his married life? आप लोग सोचते हैं ये अय्यूब जो था उसका विवाहित जीवन में खुशी था? He was happy. वो खुशी था। Okay, God had blessed him, that his marriage life was a real blessing for him. परमेश्वर ने उन्हें बहुत अच्छा तरीका से उसको आशीष दिया था, बहुत संभाला था प्रभु ने उसको। And this morning Deepak read this verse, Joel chapter 2 verse 13. सुबह जब भाई दीपक पढ़ रहे थे योएल का किताब 2:13। Okay, marriage keeps your heart in the right place. जो शादी जो है ऐसा चीज है जो आपका हृदय को एकदम ठीक जगह में रखता है। Because of my wife and my children, my heart is in the right place. मेरा पत्नी और मेरे बच्चे के कारण से मेरा हृदय एकदम सही जगह पे है। Okay, for me, the temptation is I need to go to that village, to that village, to that village, to go everywhere and forget about my family. और मेरा ऐसा परीक्षा है कि मैं इस गांव से वो गांव से उस गांव, ऐसे मैं चलते रहता हूँ और मैं अपने परिवार के बारे में भूल जाता हूँ। But marriage is teaching me my heart has to be in the right place. Why should I go to all those villages? लेकिन ये विवाहित जीवन जो मुझे शिक्षा भी देता है और मुझे सिखाता है कि मैं और मेरा हृदय को सही जगह में रखना है और मैं इतने गांव में, हर एक विभिन्न गांव में क्यों जाऊं? If I cannot take care of my family, what use is my going to so many places? यदि मैं अपने पत्नी को ख्याल नहीं रखता हूं तो मैं बहुत सारा गांव में जाके घूम के आऊं या जाऊं मुलाकात करके आऊं, ये कोई काम का नहीं होगा। So marriage keeps my heart in the right place. So जो ये है, जो शादी जो है मेरा हृदय को ठीक जगह में एकदम पकड़ के रखता है। If this relationship is good, then I can do the rest. The Lord will help me and bless the rest. यदि मेरा पति और पत्नी का जीवन जो संबंध जो है एकदम सही है तो हर जगह में मैं जा सकता हूँ। And as we already saw in Ephesians chapter 5 verse 25, this relationship, marriage, husband and wife relationship, is the picture of the love of Christ for the church. और एफएसी 5:25 में जब हम लोग देखते हैं, वह पढ़ते हैं, ये जो शादीशुदा जीवन है ये उसके बारे में दिखाता है, उसके बारे में दर्शित करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। And the Lord Jesus Christ truly loves a sinner like me. और प्रभु यीशु मसीह जो सचमुच मुझे प्रेम करता है, मुझ जैसे पापी को। He could have divorced us as sinners. I don't want these sinners. Horrible people. प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है, ये पापी लोग तुम दूर हो जाओ, मैं इसको त्याग दूंगा, उसका कहने का अधिकार है। But he has not. He has embraced us. He has brought us in.
लेकिन वो क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। वो हमें इस अवस्था में भी वो हमें गले लगाता है, अपने पास रखता है, हमें बुलाता है। And so let us enjoy this relationship that we have with God. सो आए हम इसे, ये विवाहित जीवन जो है, इसे हम लोग पूरा आनंद के साथ में बिताए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And those of you who are waiting on this, we will pray for you that the Lord bring the right person in your life. और जो लोग अभी तक विवाह नहीं किए हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपके लिए सही रास्ता चुने, सही लोग, सही जीवन साथी आपके जीवन में लाए। May the Lord's name be glorified. इस वचन से परमेश्वर का ही महिमा होने पाए। धन्यवाद।